like since 3 years. I have seen, I have witnessed, I am the program coordinator. He has given me the duty that Sandeep, you're going to have to take care of all the stuff that you have seeing, like you have to provide the facilities in the lockdown. Government is, I can see like the central government is focusing on public. हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की हार के बाद के दिल्ली में एमसीडी में अपनी जो है सीट को कामयाब कर पाएंगे। तो हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं कार्यकर्ता, तो हम पूछेंगे क्या नाम है सर आपका? संदीप कुमार एंड आई एम फ्रॉम नरेला, वार्ड नंबर 3, अलीपुर विधानसभा। तो संदीप जी, जैसे कि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के चुनावों में बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर सीमित रही, तो क्या लगता है कि अब एमसीडी के चुनाव में दिल्ली में कुछ कर पाएगी बहुजन समाज पार्टी? No, actually, Uttar Pradesh politics is really very different from Delhi's politics, because you can see here BJP is already in the central government, and in Delhi, all 7 Lok Sabha seats they have won. Same voters they have voted to Kejriwal, same voters they have voted to BJP. Still, it means the Delhi population, the public of Delhi is so clever. They want Modi in center, they want Kejriwal in state. Same thing in Jahangirpuri, Sri Mayawati's party is over there. Like 3 or 4 seats are over there. And before that there was like, because where I am from Narela Vidhan Sabha, our MLA, he started his career from Mayawati's party. 3 times he is elected for the Nigam Parshad. His wife already won 2 times. And then he again won for MLA. So it means like you can see like he has started his career from Mayawati's party. So the same thing. So you can see, because the question you have asked me right now is like, we have lost our seats from Uttar Pradesh, how we are seeing Delhi. Delhi's public is so different. And Bablu Kohli and his wife, they have already helped a lot of people, like since 3 years. I have seen, I have witnessed, I am the program coordinator. He has given me the duty that Sandeep, you're going to have to take care of all the stuff that you have seeing, like you have to provide the facilities in the lockdown. Government is, I can see like the central government is focusing on public, and Delhi's government is already. But still like there are some kind of circumstances, like they can't feed the road people. But he was the guy like who was, he's gone over there. We are making daily food. We are providing them raw material like rice if they don't have money to afford for the same stuff. And right now, so the strategy is so different. We are looking forward for a strategic planning to provide more facilities if we are going to come. Of course, we are going to come. Mr. Bablu Kohli and Kusum Kohli, his wife, is going to win the election this time again. तो जैसा कि आपने भी बोला यहाँ पर कि दिल्ली की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता में काफ़ी डिफरेंट है, तो इसमें कि यहाँ पर केजरीवाल सरकार भी अभी पिछले 7 सालों से बनी हुई है, पंजाब में भी केजरीवाल ने बहुमत पार किया है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? पंजाब के लोगों को तो फुग्गा दे दिया, 1000 रुपये अकाउंट में भेजेंगे, सबके अकाउंट में 1000 रुपये। दिल्ली वाले को तो देख ले, पहले पंजाब देखे चला गया वहाँ पे। दिल्ली वाले को तो कर नहीं रहा, लोगों की पेंशन बंद करा दी उन लोगों ने। तो दिल्ली सरकार ने पेंशन बंद कर दी लोगों की यहाँ पे, वहाँ पेंशन चालू कर रहे हैं। वहाँ पे दिल्ली संभाल नहीं जा रही, पंजाब जा रहे देखने। तो ये तो लोगों को फुग्गा दे जा रहा, रेत की दीवार डस जाए कभी भी आगे, ये फुटवट्टी कर रहे हैं लोगों के साथ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि केजरीवाल सरकार जो है दिल्ली के जो भी बहुजन समाज के लोग दिल्ली में रहते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रही है? वो तो नहीं है, ऐसे कैसे आकर्षित हुए वो नहीं। केजरीवाल सरकार ने अभी प्रोग्राम भी चलाया था डॉक्टर BR अम्बेडकर का, और काफ़ी चीज़ें ऐसे नारे भी दिए उन्होंने अपनी पार्टी में। नो देखिए, बड़े बूढ़े जो लोग हैं, ठीक है, उन्होंने काम किया है, उनका सहारा लेके तो किसी के कंधे पे ऊपर क्या भी बंदूक चला सकते हैं, कोई भी चला सकता है। ऑफ कोर्स दे आर डूइंग द सेम स्टफ। और बबलू जी हमेशा इस चीज़ में साफ रहें कि स्टेट फॉरवर्ड, अगर आज तक आपको देता है, आप न्यूज़ में हो, ठीक है, ऑफ कोर्स, और आप अच्छा काम कर रहे हो कि लोगों को मैसेज पहुंचाना उस चीज़ का। अगर आज तक वाले आपको बोलते हैं कि ठीक है 2 लाख की सैलरी दे रहे हैं, आपको फुग्गा दे दिया, ठीक है, 1 महीने दे दी, उसके बाद आपकी वो कर दी, फिर आपको तो ये कंपनी भी नहीं रखेगी। नहीं है कि नहीं है? सेम चीज़ है। एग्जाम्पल उस तरीके से सोचो कि जनता दिल्ली की बहुत चालाक है, ये कैपिटल टेरिटरी में रह रहे हैं। और जैसा कि मैं अभी उदाहरण आपके सामने दिया इंग्लिश में, जो मैंने अभी बोला, हमारे यहाँ के MLA ने अपने करियर सिर्फ और सिर्फ मायावती के वहाँ से स्टार्ट किया था, और मायावती के नेतृत्व में उन्होंने लड़ा था, उनकी वाइफ ने भी लड़ा था, जिसमें उन्होंने हैट्रिक मारी थी। और जाहिर सी बात है, लोग मायावती जी के नेतृत्व में आगे बढ़े और लोगों ने करा है। तो ऐसे तो बीजेपी के नेतृत्व में भी काफ़ी लोगों ने अपना करियर बनाया है, जैसे अभी यहाँ पर जो है MP भी रह चुके हैं काफ़ी लोग बीजेपी के करियर में।
नहीं, बीजेपी की आप स्ट्रेटजी थोड़ा अलग तरीके से देखिए। और आप जैसे आपने समाज सेविका का बात की यहाँ पर, तो कोरोना काल में पिछले काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने गरीबों की मदद की, तो क्या वो भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव लड़ने का उनका कोई उससे, अब तो आप बोलोगे रतन टाटा ने 1500 करोड़ दिए थे, मेरे हिसाब से तो 1500 करोड़ के हिसाब से तो उसको 1 करोड़ में अगर टिकट मिलती है तो 1500 करोड़ के हिसाब से तो उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नहीं, आपकी रतन जीत टाटा जी ने जिस तरीके से आपने अभी एग्जाम्पल दिया है, आप थोड़ा आंकड़े साफ कीजिए। जीत के हिसाब से जैसे आपने बताया था कि इन्होंने जो है समाज सेविका ने काम किए, समाज में काम किए एक समाज सेविका बन के, तो इनकी जीत जो है निश्चित पक्की है। तो इस पर मेरा सवाल था कि क्या ऐसे अन्य जो तमाम लोग हैं जिन्होंने समाज में काम किया है गरीबों के लिए, तो क्या अगर वो भी चुनाव लड़ें तो उनकी भी जीत पक्की होगी? देखिए, मदद का मतलब ये नहीं होता कि वो चुनाव के दृष्टिकोण से देख रहा है कि मुझे चुनाव ही लड़ना है। वो तो लोगों का प्यार है कि लोग बोल रहे हैं कि आप खड़े होइए ताकि हमारी मदद और अच्छी तरीके से हो सके। ये लोगों के दबाव में आके ये खड़े हुए हैं, इनको क्या ज़रूरत है? ये शुरुआत से समाज सेवी कोई अपने आप ऑटोमेटिक कोई पोस्ट तो है नहीं कि चेयरमैन बन गए या कोई मैनेजर बन गए, वो तो एक पोस्ट होती है। समाज सेवी तो अंदर से खुद फीलिंग्स होनी चाहिए कि किसी की मदद करो, तो इसी तरीके से उन्होंने करी और हमेशा करते आए हैं और आगे भी करेंगे, जाहिर सी बात है। स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग अलग है, बस यही है लोगों की। धन्यवाद।